اعلی ترین اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار آپ کی توجہات پر اور آج کے اس خصوصی مضمون پر جو آپ اپنی سماعتوں کو نظر کر رہے ہیں. عزیزان محترم، مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ جہالت کی باتیں ہیں، یہ احمقانہ گفتگو ہے کہ کافر کون ہے، مومن کون ہے. یہ سنت رسول کے خلاف ہے. اسلام آیا تھا کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے. نہیں غور کیا آپ نے. آج یہ جملہ سننے، کل اس کی تشریح بھی کروں گا انشاءاللہ. اسلام اور پیغمبر اسلام سرکار خطی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام آیا تھا، پیغمبر اسلام تشریف لائے تھے کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے. جتنے بھی کافر تھے سب کو مسلمان بنائے. تو سنت رسول کیا ہوئی؟ بڑی توجہ. ایک ہی جملہ ہے، یہ پلٹے گا سارا مجمع چھلک جائے گا. سنت رسول کیا ہوئی؟ کافروں کو مسلمان بنانا. سیرت پیغمبر کیا ہوئی؟ کافروں کو مسلمان بنانا. مجھ سے کیوں دوسرا جملہ کہلوانے کو آپ آمادہ ہو رہے ہیں؟ اسی جملے کو سمجھ لیجئے نا. سنت رسول کیا ہوئی؟ کافروں کو مسلمان بنانا، وحشیوں کو انسان بنانا، درندوں کو آداب بشریت ادا کرنا، لٹیروں کو رہبری کے انداز عطا کرنا. اور جو ہے یہ ہے سنت رسول. اور ان سب کا خلاصہ کیا ہوا؟ سنت رسول ہے کافروں کو مسلمان بنانا. اب سنت رسول کے جتنے بھی پابند ہیں اور قائل ہیں یا مدعی ہیں، میرے تینوں جملوں پہ توجہ. سنت رسول کے جتنے پابند ہیں یا قائل ہیں یا مدعی ہیں، حضور، یا مدعی ہیں یا قائل ہیں یا پابندی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سنت رسول پر چلتے ہیں، تو عزیزان محترم دو چیزیں ہیں. آپ کو دو کیفیتیں نظر آئیں گی، دو کیفیتیں نظر آئیں گی. بیست سرکار جی دیکھیں جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا، بیست سرکار رسالت کے موقع پر دو کریکٹر ابھر کر سامنے آئے ہیں. ایک عمل سامنے آیا ہے، ایک رد عمل سامنے آیا ہے. رد عمل کے طور پر جو کردار سامنے آئے ان میں ابو لہب نامی گرامی، ابو جہل نامی گرامی، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو سفیان، یہ پورے خاندان اور قبیلے، یہ سب کے سب رد عمل کے طور پر سامنے آئے. اعلان رسالت سے پہلے یہ قبیلے محمد کے دشمن نہیں تھے. توجہ 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 کریں، سلام دے دیں محمد عالم. میرے دوستوں، میں تاریخ کے ساتھ بددیانتی کبھی نہیں کرتا. جو کچھ تاریخ میں ہے اور جو میں مطالعہ کرتا ہوں اسے پوری ذمہ داری سے، اس لیے کہ اس ممبر سے کتمان حق نہیں کیا جا سکتا، حق کو چھپایا نہیں جا سکتا، ورنہ اس ممبر پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے. صلوات بھیجیں آپ محمد علیہ. مسئلہ جو ہے رد عمل کے طور پر آپ ذرا سا تاریخ کے ساتھ ساتھ چلیں گے میرے نوجوان دوست، تو آپ کو ایک نتیجہ سامنے آئے گا. اور اسی حوالے سے میں انشاءاللہ اسلام اور مسلمان کا فرق واضح کروں گا کہ اسلام کیسا مسلمان چاہتا ہے. اسلام صرف کلمہ پڑھنے والا پریکٹسنگ مسلمان چاہتا ہے یا نان پریکٹسنگ مسلمان چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے کیا ہے؟ اس پر انشاءاللہ ہم کل گفتگو کریں گے. آپ جب باہر کے سفر کرتے ہیں نا تو باہر کے باقاعدہ امیگریشن کارڈ پر اور جہازوں پر آپ کو یہ بھی پوچھا جاتا ہے یورپی کنٹریز میں، آر یو پریکٹسنگ مسلم اور نان پریکٹسنگ مسلم؟ نام کے مسلمان ہو یا کام کے بھی ہو؟ صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم. ہے نا؟ یہ خانہ پر کیا جاتا ہے. خیر اس تفصیل میں ابھی ہم نہیں جا رہے، لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں ضرور عرض کریں گے کہ جب سرکار رسالت واب نے اعلان کلمت الحق کیا، اعلان اسلام کیا، اعلان کلمت الحق کیا، اعلان اسلام کیا، فاران کی چوٹیوں سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند کی، تو عزیزان محترم اس آواز سے پہلے، اب میرے جملے بتائیے آخر کیوں اس آواز سے پہلے مجھے کوئی قبیلہ نبی کا دشمن نظر نہیں آتا. پوری تاریخ اس آواز سے، اس اعلان سے پہلے، اس آغاز سے پہلے ہر قبیلہ عبداللہ کے بیٹے سے پیار بھی کرتا ہے، عزت بھی کرتا ہے، صادق بھی کہتا ہے، امین بھی کہتا ہے،
अमानतें भी रखवाता है, अपने झगड़े भी फैसले कराता है, अपने मसाइल का हल भी लेकर, अब एक चुल्लास करूँ, अपने मसाइल का हल भी इसी के पास लेकर आता है। खुद परस्त है, लेकिन अगर अरब में कैद साली हो जाए और बारिश ना हो और उसकी वजह से फसलें तबाह हो जाएं, डंगर जानवर मरने लगे और पानी की इंतहाई कमियाबी हो जाए, तो ये सारे अरब के काफिर कबीले ऐलान रिसालत से पहले सबके सब इकट्ठे होकर न लात के पास जाते हैं, न मनात के पास जाते हैं, न हुबुल के पास जाते हैं, न उज्जा के। सलावात भेजे ना, सलावात भेजे। तो भाई आज की मजलिस का मैं तारीखी मरहला आपकी समातों की नजर करूंगा, मगर आपको पूरी तरह बेदार और आमादा होकर इस मंजिल को समझना। देखें भाई, ये बड़ी अजीब सी मंजिल है। ये आपको तवज्जो तारीख इस्लाम के तालिब इल्म को, मेरे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को, वो किसी मजहब से ताल्लुक रखे, किसी मसलक से ताल्लुक रखे, आए हमारे इमाम बारगाह में और देखें कि हम तारीख कितनी दयानतदारी से पेश करने के आदी है। अदीदान मोहतरम, अरब में कैद सारी हुई है, अभी ऐलान रिसालत नहीं हुआ, अभी सरकार रिसालत बाप की बजाय सिने मुबारक सिर्फ 9 या 10 बरस का है, ऐलान रिसालत 40 बरस के बाद हुआ है। ये तो मुतफ़िक़ा मसला है ना, अरब में कैद पड़ता है। बस मुझे नहीं पता तारीख के मुअर्रिख ने पैगंबर का सिन क्या रखा, क्या लिखा कि कितनी उम्र मुबारक थी सरकार रिसालत बाप की। बस इतनी उम्र मुबारक थी कि सारे अरब के काफिर कबीले न लात के पास जाते हैं बारिश की दुआ करने के लिए, हालांकि उनका बारिश का देवता भी था, पानी का देवता भी था। अपने अपने बुत बना रखे थे ना, ये बारिश देगा, ये बुत बारिश देगा, ये बुत रिस्क देगा, ये बुत तलवार देगा, ये बुत शेर देगा, ये बुत कसीदा देगा, ये बुत हमें कुव्वत देगा, ये बुत ताकत देगा। तभी तो 360 हो गए थे। और ठीक है, 2-4 ही बुत बना लेते काफी थे, लेकिन बुत बढ़ते चले, इसलिए कि ख्वाहिशें बढ़ती जाती थी ना। आपने गौर नहीं किया, ख्वाहिशों की तकमील के बुत थे वो। तो जो है पूरी तारीख है अरब को, हिस्ट्री और सारसंस को आप जब पढ़ के देखेंगे, अज़ान मुहतरम और गैर मुस्लिमों की तारीखें भी आप पढ़कर देखेंगे, तो आप इस नतीजे पर खुद ब खुद पहुंचेंगे कि उस जमाने में अरब में जब कैद साली हुई तो न कोई खाने काबा के पास आया, न किसी ने काबे का पर्दा हिलाया, न कोई गिड़गिड़ाया, न कोई लातो मनात के कदमों में गिरा, न किसी ने सजदा किया, कोई अल्लाह के घर की तरफ कोई कबीला नहीं गया, न अबू लहब का कबीला, न अबू जहल का कबीला, न अतबा का कबीला, न उतैबा का कबीला, न शीबा का कबीला, न अबू सुफयान का कबीला। ये बड़े बड़े 5-6 कबीले जो थे, ये सब के सब न काबे की तरफ गए, न अपने बुतों की तरफ गए, बल्कि काबे के दरवाजे को छोड़कर मैंने तारीख में देखा कि अरब के सारे सरदार, काफिर सरदार इकट्ठे होकर अबू तालिब के दरवाजे पर आकर सजदारेजी कर रहे हैं। सलावत भेजे तो फिर मैं आज करूंगा। देखिए, मैं ये बता रहा हूं कि कबल इस्लाम के काफिरों की कैफियत क्या थी ये, और फिर ये सब के सब रद्द अमल के नतीजे में दुश्मन कैसे हुए, वो क्या वजह थी, वो क्या सबब था, इसके पस मंजर को आज की तमहीदी मजलिस में आपके खिदमत पेश करने के लिए ये एक खूबसूरत नतीजा हमारा सलामत रखे, चश्मे बद से महफूज रखे, मोमिनीन और मोमिनात के इस तारीखी इज्तिमा को अल्लाह तुम्हारे पर्दे सलामत रखे, अल्लाह जवानों की जवानियां सलामत रखे, चश्मे बद से आपको महफूज रखे, मौला इस अजादारी और अजाखानों को नजर बद से महफूज रखे, इस अजादारी को जो गलबा अता करे, दिल की गहराइयों से दुआएं देते हुए मगर आपकी पूरी ज़हनी आबादी चाहता हूं, फैसला एक तारीखी दूंगा, और वो ये अदीनाए मोहतरम के सारे सलादीन कुरैश इकट्ठे होकर अबू तालिब के दरवाजे पर आए हैं, किसी बुत के पास नहीं गए, किसी लातो मनात के पास नहीं गए, आकर तकुल बात किया। अबू तालिब ने देखा सारा कुफ्र, कुल का कुल कुफ्र, नहीं गौर किया उस जमाने में कुल का कुल कुफ्र कुल्ले ईमान के बाप के दरवाजे पर, कुल का कुल कुफ्र कुल्ले ईमान के बाबा के दरवाजे पर हाथों को जोड़े हुए खड़ा है और इस तरह कर रहा है, ए अबू तालिब, एक अरसा हो गया बारिश नहीं हुई, बरसात नहीं हुई, फसलें जल गई, डंगर मर गए, हैवान मर गए, चरंद परंद मर गए, फसलें तबाह हो गई, इंसान भूख से मर रहे हैं। इंसानियत को बचाने के लिए आप काबे के मुहाफिज, अब तवज्जो करें जुमले पर, आप काबे के मुहाफिज हैं, आप काबे
काबे के वारिस है, आप अंबिया मा सबक के वारिस है, आपकी दुआ मुस्तजाब होती है। जुमला सुने पूरी तवज्जो से, ना सुना अगर और गौर न किया तो मुझे अपनी बदकिस्मती पे मातम करना पड़ेगा, और गौर कर लिया तो रिज़विया इमाम बारगाह का तारीखी नारा आएगा। वज़ाहत नहीं करूंगा, आप वारिस काबा भी है, आप वारिस अंबिया भी है। ए अबू तालिब, आप अपने अल्लाह से दुआ करें कि वो बारिश बरसाए। अरे कबले इस्लाम में अरब के बड़े बड़े काफिर तो अबू तालिब से कह रहे हैं आप अपने अल्लाह से दुआ करें। तवज्जो है ना? या अली अभी जरा गौर फरमा लें जुमले पर, मौला आपको सलामत रखे। हाँ, यही तवज्जो मैं आपकी चाहता था, और अब इसका नतीजा आज की मजलिस का तारीखी मंजिल में दोस्तों इंशाअल्लाह अगर मौला ने मदद की तो अर्ज करूंगा, और वो ये, आप अपने अल्लाह से दुआ करें, अपने अल्लाह से। ये नहीं कहा कि आप काबे में चले, लात से कहें, मनात से कहें, हुबल से कहें, उज़्ज़ा से कहें, बुतों से कहें। आप अपने अल्लाह से दुआ करें कि वो बारिश बरसाए। आप अपने अल्लाह से कहें, अपने अल्लाह से कहें। यानी काफिरों ने खुद कह दिया हमारे बुत और हैं, अबू तालिब का अल्लाह और है। या अली हमारे बुत और हैं, काफिरों के बुत और हैं, अबू तालिब का अल्लाह और है। काफिरों ने तस्लीम कर लिया ना, काफिरों ने तस्लीम कर लिया ना, बड़े बड़े काफिरों ने मान लिया ना कि अबू तालिब के पुत नहीं थे, अबू तालिब का अल्लाह है, अल्लाह है। तभी तो कहा आप अपने अल्लाह से, किसी तारीख में और कोई दूसरा जुमला नहीं मिलता, आप अपने अल्लाह से दुआ करें कि वो बारिश बरसाए। इस क्यों आपकी दुआ मुस्तजाब होगी कि आप अंबिया के वारिस हैं। आप तो गौर नहीं किया, आप नबियों के वारिस हैं। भाई नबियों को तो मासूम मानते हो ना, मासूम का वारिस कभी काफिर नहीं हुआ करता। मासूम का वारिस जब गैर मासूम नहीं हो सकता तो काफिर कहां से वारिस? सलावत में जरा, काफिर कहां से वारिस होगा? अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रगुजार हूं। अब बहुत तवज्जो सी और एक मरहले पर आप अदा की चाहता हूं दोस्तों। अबू तालिब, आप अपने अल्लाह से दुआ करें कि खुदा, आपका खुदा, आपका अल्लाह आपकी दुआ सुनेगा, मुस्तजाब करेगा, इसलिए कि आप अंबिया के वारिस हैं। अबू तालिब मुतवस्सिम हुए, मुस्कुराए। चाहिए तो ये था। अब मैं सब ये बताना चाहता हूं कि लोग जो अबू तालिब को काफिर कहते हैं उसका पस मंजर क्या है। सारे मुसलमान भाइयों, तुम्हें रसूल अल्लाह की कसम, मेरा ये जुमला अपने दिल की गहराइयों में उतार के जाना तो यकुम मुहर्रम को रिज़विया इमाम बारगाह में मोहब्बत के गुलदस्ते के तौर पर आपको इरफान आब्दी अली के मिंबर से अता दे रहा है। इसको तोहफा समझ के ले जाना। अबू तालिब पता चलेगा इस पस मंजर में कि काफिरों की नजर में अबू तालिब काफिर क्यों है। होना तो ये चाहिए था, अबू तालिब फख्र से सीना फुलाते, खुद खाने काबा के पास जाकर खड़े हो जाते, दुआ करते कि इतने काफिर मुझे वसीला बनाने के लिए आए हैं। लेकिन अबू तालिब ने कहा तुम जरा ठहरो, मैं अभी आता हूं, बारिश बरसवाना है ना। थोड़ी देर के बाद देखा कि पैगंबर इस्लाम उंगली पकड़े हुए नहीं, अपने कंधे पर रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजना। एक मरतबा और दूध पी लीजिए। कि सरकार अबू तालिब अपने कांधों पर बिठाए हुए पैगंबर को आए। इससे सिनो साल का तयन तो हो गया कि इतनी उम्र थी कि अबू तालिब कांधे पे बिठाते। जो साहिब मेराज हो उसकी पहली मेराज अबू तालिब का दोष है। जब तो ये मसला हल होता। सलावत हो देना। पूरी ताकत से आखिरी आदमी तक आपके जहनों को और आपको सलामत रखे। आप गौर करें, जो साहिब मेराज है ना, जो दना फतद अल्लाह की मंजिल तक पहुंचा है ना, उसकी पहली मेराज अबू तालिब का कांधा है। और चूंकि कुरान का फैसला है भाई, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, अल्लाह ने वादा किया है, अबू तालिब एहसान का बदला एहसान है, नेकी का बदला नेकी है। तुमने हमारे हबीब को अपने कांधे पर सवार करके मेराज कराई है। हमें भी कसम है अपने इज्जत और जलाल की, हम तुम्हारे बेटे अली को मोहम्मद के कांधे पर काबे में ऐसी में या अली या अली या अली या सलावत है। जनाब आवाज
चंद ही लम्हे गुजरे थे कि अबू तालिब अपने कांधे पर सारी तारीखों ने जो उम्मुल तवारीख कहलाती है ना मुसलमानों में, जो तारीख की माँ कहलाती है, उसमें भी ये रिवायत मौजूद है तारीख तबरी में। इस तारीख मलूक भी ये कहलाती है। इस जुमले पर आप जरा सा तवज्जो फरमा लें तो एक खूबसूरत सा नतीजा आपकी खिदमत में अर्ज कर दूंगा और यही आज की मजलिस का खुलासा होगा। ज्यादा दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है चूंकि मुझे दूसरे मकाम पर भी यहाँ से पहुंचना है, लेकिन आप जिस पाबंदी वक्त और शौक और बड़ी तादाद में बाहर तक सड़कों तक मौला सलामत रखे जहां तक मोमिनीन और मोमिनात बैठे हुए हैं, इस नतीजे को अगर आप लेकर चले गए मेरे मुसलमान भाई तो फख्र करेंगे कि हमारी मजलिसों से पैगाम इल्म दिया जाता है। सरकार अबू तालिब मोहम्मद मुस्तफा को अपने कांधों पर बिठाए हुए अब बैतुल शरफ से बाहर आए, खाने काबा के नजदीक पहुंचे, बुतों के पास नहीं गए, खाने काबा के पर्दे को चूमा, वहां से पहाड़ के दामन पर चढ़ते हुए एक बुलंदी पर गए। आगे आगे अबू तालिब के दोस्त पर साहिब मेराज पाए हुए आमिना का चांद, अब्दुल्ला का यतीम जिसकी उम्र 8 या 9 या 10 बरस की है, उसे कांधे पर बुलंद किया। सारे सनादीद कुरैश, सारे सरदारान मक्का चारों तरफ खड़े हैं, बीच में अबू तालिब मोहम्मद अरबी को अपने कांधे पर लिए हुए बुलंद होते हैं और उसके बाद परवरदिगार आसमान की तरफ रुक करके कहते हैं, ये नात, ये दुआ हर तारीख में आज तक मौजूद है। या रब्बुस समावाति वल अर्ज़, ऐ आसमान और जमीन के पालने वाले, ऐ जमीन और आसमान के रब, तेरी मखलूक कहवत साली से मर रही है, पानी के एक एक कतरे को अबू तालिब कह रहे हैं, पानी के एक एक कतरे को मोहताज है, नहरें खुश्क हो गई हैं, तालाब खुश्क हो गए हैं, हैवान मर रहे हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, इंसान मर रहे हैं, यहां तक तो खुद कहा और उसके बाद इशारा किया उस सरकार रिसालत माब के चेहरे की तरफ, पालने वाले मैं नहीं कहता, तुझे वास्ता है इस चांद से चेहरे वाले मोहम्मद का और इसकी इन जुल्फों का, जिसकी जुल्फों के लहराते हुए देखकर घटाएं झूम झूम कर बरसती है, इसकी जुल्फों को देखकर, अरे तवज्जो करते जाए मैं जुमला कह रहा हूं, जिसकी जुल्फों को देखकर बादल झूम झूम कर आते हैं, तुझे इस चांद से चेहरे वाले मोहम्मद का वास्ता और इसकी घटाओं जैसी जुल्फों का वास्ता। पानी बरसा, तारीख तबरी के लफ्ज ये है कि अभी मोहम्मद की जुल्फों और मोहम्मद के चेहरे का वास्ता ज़बान अबू तालिब से मुकम्मल नहीं हुआ था कि मशरिक से बादल आया, मगरिब से बादल आया, शुमाल से बादल आया, जर्रा जर्रा सैराब हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम, अब पता चला कि ये सारे कलमा पढ़ने वाले अबू तालिब को काफिर क्यों कहते हैं, इसलिए कि अबू तालिब ने अब बारिश बरसाने के लिए अल्लाह से दुआ बगैर वसीले के नहीं, मासूम वसीले से, और जो है सावत कहते हैं। अभी रहमत की आयत नाज़िल नहीं हुई, लेकिन ईमान अबू तालिब, कलमा पढ़ने वाले अबू तालिब को काफिर क्यों कहते हैं, इसलिए कि अबू तालिब ने अब बारिश बरसाने के लिए अल्लाह से दुआ बगैर वसीले के नहीं, मासूम वसीले से, और जो है सावत कहते हैं। अभी रहमत की आयत नाज़िल नहीं हुई, लेकिन ईमान अबू तालिब ने अंदाजा कर लिया कि अल्लाह रिज़्क़ देगा तो मोहम्मद के सदक़े में, बारिश बरसाएगा तो मोहम्मद के सदक़े में, इंसानों को हलाकत से बचाएगा तो मोहम्मद के सदक़े में। पूछना ये चाहता हूं कि 9 बरस की उम्र में जिसका वसीला अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रहा हो, वो 40 बरस तक नबी कैसे नहीं था? सवाल मिलेगा, बुलंद आवाज से बोलो मेरे दोस्तों। अल्लाह आपको सलाम। 8 या 9 बरस की उम्र में जिसके जुल्फों के सदक़े में, जिसकी रहमत कामिल के सदक़े में, जिसके चेहरे की चमक के सदक़े में घटाएं झूम झूम कर आए और इंसान सैराब हो जाए, हलाकत से बच जाए, तो मालूम यह हुआ कि यह सिर्फ अबू तालिब ही का घराना है जो इंसानों को हलाकत से बचाता है।
چاہے وہ ابو طالب کا بھتیجا ہو یا ابو طالب کا بیٹا ہو، سلامات بھیج دیں آپ محمد، ہلاکت سے بچا جائے۔ یعنی اگر نبی نہ ہوتے تو سارا عرب ہلاک ہو جاتا۔ آگے صلوات پڑھ لیجئے، چلیے، ضروری ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ یہ خاندان ہلاکت سے بچاتا ہے۔ دوستو، بات صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ساری تمہید اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اور یہی سے میں گفتگو کا آغاز انشاءاللہ مولا کی مدد سے اور آپ حضرات کے تعاون سے، آپ کی دعاؤں سے کروں گا۔ اس امر پر ذرا دنیا کو توجہ تو کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ بات کیا ہے کہ اب تک تو لوگ محمد کو وسیلہ بھی سمجھ رہے ہیں، رحمت بھی مان رہے ہیں، صادق بھی سمجھ رہے ہیں، امین بھی سمجھ رہے ہیں، قید سالی سے بچنے کا واحد راستہ بھی جانتے ہیں، اپنی امانتیں بھی اس کے پاس رکھواتے ہیں، سب اس کے دوست ہیں، کوئی محمد کا دشمن پورے عرب میں نظر نہیں آتا۔ اور ادھر محمد عربی کہتے ہیں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، تو یکایک کیا ہو گیا کہ سارے پیار کرنے والے محمد کے خون کے پیاسے ہو گئے، سب دشمن ہو گئے، سب راہوں میں کانٹے بچھانے لگے، سب کوڑا کرکٹ پھینکنے لگے، سب نے ہجرت پر مجبور کر دیا۔ آخر یہ مسئلہ کیا تھا دوستو؟ مسئلہ صرف یہ تھا، مسئلہ صرف یہ تھا کہ اس وقت کے کافروں نے عبداللہ کے بیٹے کو محمد سمجھا تھا۔ محمد جب نبی کی صورت میں سامنے آیا، توجہ، محمد جب رسول کی صورت میں سامنے آیا، نبی کی صورت میں سامنے آیا، تو سارے دوست دشمن ہو گئے، سارے دوست دشمن ہو گئے۔ تو کون دوست؟ وہ دوست جو کافر تھے۔ وہ دشمن کیوں ہوئے؟ کہ یہ ہم جیسا بشر تھا، یہ نبوت کا دعویٰ کیوں کر رہا ہے؟ تو قیامت تک کفر کہاں جائے گا جو نبی کو اپنے جیسا سمجھیں گے؟ صلوات بھیجیں محمد آل محمد۔ اور کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے نہ کسی کو تیر مارا، نہ تلوار چلائی، نہ کسی کا پانی بند کیا، نہ کسی کو زبردستی مسلمان ہونے کی بات کی۔ پیغمبر نے تو ایک اعلان کلمۃ الحق کیا تھا۔ سرکار رسالت باب نے تو ایک بات کہی تھی کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ 360 بتوں کے آگے سجدہ ریز ہونے سے بہتر یہ ہے کہ ایک خالق حقیقی اور معبود حقیقی کے سامنے سر جھکا دو، یقین کے ساتھ سر جھکا دو، پھر کسی کے آگے تمہیں سر جھکانے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ لیکن دوستو، یہ نعرہ علی نے تو نہیں لگایا تھا لا الہ الا اللہ کا، یہ نعرہ ابو طالب نے تو نہیں لگایا تھا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ تو محمد نے لگایا تھا۔ تو یہ ساری دنیا ابو طالب اور علی کی دشمن کیوں ہو گئی؟ اس کی وجہ سمجھ لو، گفتگو ختم کر دوں گا۔ آج کی حد تک نعرہ محمد نے لگایا، دشمنی ابو طالب اور علی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نعرہ سرکار رسالت باب کی زبان مبارک پر لا الہ الا اللہ کا جاری ہوا تھا، اس نعرے کو کافر وہی دبا دینا چاہتے تھے، مگر ابو طالب درمیان میں آ گئے، ابو طالب درمیان میں آ گئے۔ ابو طالب نہیں رہے تو ساری عمر علی سپر بن گیا۔ تو دشمنوں کی دشمنی کا ہدف ہے محمد، مگر راستے میں چونکہ ابو طالب اور علی آ رہے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی محمد کے دشمنوں کو محمد تک نہیں پہنچنے دے رہے، اس لیے ان کی جتنی اولادیں ہیں وہ 1400 برس سے آج تک یا ابو طالب کو کافر کہہ رہی ہیں یا علی کے ماننے والوں صلوات بھیجنا۔ اس لیے کہ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن دشمنی کس سے؟ یا علی سے یا فاطمہ سے۔ اب یعنی زندگی میں بھی دشمنی، مرنے کے بعد بھی دشمنی۔ زندگی میں دشمنی تو چلو عقل میں آتی ہے کہ یہ وہ نہیں کرنے دیتے تھے جو کافر چاہتے تھے، اور جب یہ اس دنیا سے پردہ فرما کر جنت البقیع میں دفن ہو گئے تو اب قبروں کا نشان مٹانے کا کیا مطلب؟ اب قبر میں بھی کیوں چین سے نہیں رہنے دیتے؟
یہ قبریں تمہیں کیا نقصان پہنچا رہی ہیں؟ تو بات عقیدے وقیدے کی نہیں ہے کہ قبریں اونچی ہونی چاہیے، نیچی ہونی چاہیے، نشان ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ ارے ہم کیا کریں؟ تم بدنصیبوں کے بڑے بڑے بادشاہ آبا اجداد کی اگر قبروں کا نشان نہیں ملتا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آل محمد کی قبروں کے نشان اس ضد میں کیوں مٹا رہے ہو؟ وہ تمہارے کافر آبا اجداد کی قبروں کے نشان تو مل ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ قبریں مٹی میں ہوتی ہیں، مٹی تراب کو کہتے ہیں، اور تراب کبھی ابو تراب کے دشمن کا نشان نہیں چھوڑتی۔ تو انشاءاللہ پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے مولا کی مدد سے۔ دوستو، لوگوں کو چونکہ اپنے بڑوں کی قبریں کہیں ملتی نہیں۔ ارے بادشاہ ہمارے رہے، ان کی قبر کہاں ہے؟ ان کا تخت بھی مٹ گیا، تاج بھی مٹ گیا، ان کی قبر بھی مٹ گئی۔ مٹنا تھی اس لیے کہ قبر آسمان میں تو بنتی نہیں، زمین میں بنتی ہے، مٹی میں بنتی ہے، مٹی میں مل جاتا ہے۔ تو مٹی کی تو یہ مجال نہیں ہے کہ وہ ابو تراب کے دشمن کا نشان باقی رکھے۔ مٹی سب کچھ ہے، خائن نے سارا بات بھیجے نا، خائن نہیں ہے، غداری نہیں کر سکتی۔ اس لیے مسلمان بھی ہیں اور یہ عقیدہ بھی قائم۔ نشان مٹا دو بھائی، نشان کیوں مٹا دو؟ اس لیے بات کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ محمد کی سبر کیوں بن گئے، یہ کلمہ توحید کی بنا کیوں بن گئے؟ جنت البقیع مٹا دو، کربلا مٹا دو، کاظمین مٹا دو، مشہد مٹا دو۔ ارے تمہیں اتنا پتہ نہیں، آل محمد کو اسی لیے تو ہم مانتے ہیں۔ دنیا میں اور آل محمد میں یہی تو فرق ہے کہ دنیا کے بے عزتوں کو عزتیں نصیب ہوئی عزت دار شہروں کی وجہ سے، اور بے عزت شہروں کو عزتیں ملی آل محمد کی قبروں کی وجہ۔ صلوات بھیجے نا محمد آل محمد پر۔ اور فرمایا آپ نے، میں کیا کروں گا، ہم نے گنجائش نہیں ہے، میں ذرا سی اس کی وضاحت کرتا، کل انشاءاللہ وضاحت کروں گا، لیکن ایک جملے کی طرف اشارہ ضرور آج کے حد تک کرنا چاہتا ہوں۔ اب الحمدللہ آپ اپنی معیار سماعت کی اس وقت معراج پر ہیں، اس لیے ایک جملہ ہی اشارتاً بہت کافی ہوگا۔ عزیزان محترم، یاد رکھو، ہمیشہ ہمیشہ وہ لوگ اچھے مقامات پر دفن ہونے کی تمنا کرتے ہیں جنہیں یہ پتہ ہے کہ اگر ایسے ہی کسی عام جگہ پر دفن ہو گئے تو کوئی عزت نہیں کرے گا۔ لیکن آل محمد وہ ہیں کہ جنہوں نے گمنام مقامات کو عزت دار بنا دیا۔ مکے میں گئے تو مکے کو معظمہ بنا دیا، مدینے میں آئے تو مدینے کو منورہ بنا دیا، مدینے کے قبرستان میں پہنچے تو اس قبرستان کو جنت البقیع بنا دیا، کربلا میں پہنچے تو اسے محلہ بنا دیا، نجف میں پہنچے تو اسے اشرف بنا دیا، مشہد میں پہنچے تو مقدس صلوات میں جناب۔ اس طرح سے جاتے رہے، بات میں جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، یہ طے تو اللہ نے کر دیا ہے، یہ تو ارادہ اس مشیت کا ہے، وہ حقیقی ہے۔ آل محمد کی زندگی کا ایک ایک سانس اور آل محمد کا ایک ایک جھگ اس دنیا سے گیا ہے توحید کا نام باقی رکھتے ہوئے۔ تو وحدانیت کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ خدا ہے اور یقیناً خدا ہے اور وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے تو دنیا مٹاتی رہے گی، اللہ باقی رکھتا رہے گا۔ تم ایک قبر پہ ہل چلاؤ گے، ہم ہر بارگاہ میں جنت البقیع بنائیں گے۔ صلوات بھیجے نا محمد آل محمد۔ ایک قبر پہ ہل چلاؤ گے، ہر بارگاہ میں جنت البقیع بنائیں گے، ہر بارگاہ میں کربلا بنائیں گے، ہر بارگاہ میں شبیہ روضہ حسین بنائیں گے، ہر بارگاہ میں شبیہ قبر بطول بنائیں گے، اس لیے کہ یہ دیانتداری کا تقاضا ہے، یہ مٹی کا قرض ہے ہم پر، اس لیے کہ ہم ابو تراب کے ماننے والے ہیں۔ عزیزان محترم، جہاں تک مٹاتے جاؤ، لیکن سوچنا ہے میرے مسلمان بھائیوں، اتنی بات ضرور سوچو، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ پیغمبر اسلام نے کافروں کو مسلمان بنایا تھا، دشمنوں پر، میں بہت بڑا جملہ کہہ جاؤں گا، دشمنوں پر بھی نظر رحمت ڈالی تھی۔ وحشی جیسے سید الشہداء جناب حمزہ کے قاتل کو بھی رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا تھا، انتہائی کدورت کے باوجود اس سے بھی صرف نظر کیا تھا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وحشی پر رسول نے نظر رحمت ڈالی تھی، کبھی نہیں ڈالی، بلکہ اگر وہ کبھی کبھی کلمہ پڑھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ اس کا وقت نے کلمہ پڑھ لیا تھا، یہ وحشی وہ ہے جس نے سید الشہداء جناب حمزہ کا کو نشانہ بنایا تھا۔ توجہ ہے نا، ہندا کے کہنے پر
यजीद की दादी के कहने पर जो इस्लाम का सबसे बड़ा नुकसान हुआ था, कहते हैं तारीख के मौरख तो उसे भी मुसलमान मानते हैं। तो इज़ान मुहतरम, अगर इस्लाम ऐसे ही मुसलमान चाहता है तो फिर मैं ऐसे इस्लाम को नहीं माना। मुझे ये जुमला कहना, मैं बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं। मौला तुम्हें सलामत रखे। जहां जहां तक मेरे दोस्तों ने ये जुमला सुना है, इसी अगर इस्लाम वैशी जैसे मुसलमान चाहता है तो मैं ऐसे इस्लाम को नहीं मानता। मैं तो ऐसे इस्लाम को मानता हूं जिसने मुसलमान नहीं बनाए, सलमान बनाए। सलावत है मोहम्मद बहुत तवज्जो। मैं तो ऐसे इस्लाम को मानता हूं, मैं तो ऐसे इस्लाम को मानता। मैंने मना किया है, किसी किस्म का कोई पर्चा मेरे पास नहीं आना चाहिए। तवज्जो है ना, जो भी बातें करना है वो मजलिस से पहले मुझसे करें या मजलिस के बाद भी। आप तवज्जो रहे मेरे जुमले पर। इस्लाम अज़ीज़ान मोहतरम, मैं तो ऐसे इस्लाम को मानता हूं, ऐसे इस्लाम का कायल हूं कि जो इस्लाम वैसी जैसा मुसलमान पैदा नहीं करता, तो इस्लाम सलमान जैसा सलमान मिन्ना अहल बैत बनाता है, तो इस्लाम अबू सर बनाता है, तो इस्लाम मिक़दाद बनाता है, तो इस्लाम मीसम बनाता है। अब तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अगर इस्लाम तस्लीम और रजा का नाम है और इस्लाम अगर मोहम्मद और आले मोहम्मद की मारिफत का नाम है, तो आले मोहम्मद की मारिफत से सलमान बना है, अबू सर बना है, मिक़दाद बना है, बिलाल बना है, हुज़ैफा यमान बना है, मीसम बना है। और जब मीसम बना है तो उसके यकीन का आलम यह था कि वो उठते बैठते जागते सोते कोई और बात नहीं करता था, अली 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 के नारे लगाया करता था। और और जिस पर मेरी गुफ्तगू का आज इल्तवा हो रहा है, इंशाअल्लाह कल के लिए इस जुमले पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। सर, और क्या खास बात थी, ये कल इसकी वजाहत, आप इस मौजू को छेड़ेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन और क्या खास बात थी सलमान की, क्यों मिन्ना अहल बैत कहलाए? क्या खास बात थी सहाबियत के अलावा अबू जर में, क्यों कायनात के सबसे ज्यादा सच्चे इंसान कहलाए? क्या बात थी हुज़ैफा यमान में कि रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा को हुक्म दे दिया था कि अपना कुरान अगर ठीक कराना है तो हुज़ैफा यमान से जाकर ठीक कराया करो, तुम गलत कुरान पढ़ते हो। अब एक जुमला सुनेंगे दोस्तों, और पूरे नौजवानों की नजर कर रहा हूं, मौला आपको सलामत रखे। आप जिन मोहब्बतों से इन मजलिसों में तशरीफ लाते हैं, अज़ान मोहतरम, क्या बात थी मीसम में? कौन सी ऐसी खास बात थी? बस बात सिर्फ इतनी थी कि मीसम उठते बैठते जागते सोते अली अली किया करते थे। उन्होंने सिर्फ मुसलमान रहना ही गवारा नहीं किया, अली की गुलामी में इस्लाम तलाश किया। अली की गुलामी में इस्लाम तलाश किया। और यकीन का आलम यह था कि अगर ये कह दिया ना अली ने, अगर ये कह दिया ना अली ने अपने किसी गुलाम को कि तुम्हें इस दरख्त के नीचे, इस दरख्त के ऊपर, तो इसकी शाखों पर, इसकी टहनियों पर तुम्हें फांसी दी जाएगी, तो दोस्तों अली के ऐसे बायकीन गुलाम थे कि उस दरख्त को खुद जाकर नमाज मगरिबैन के बाद रोजाना पानी दिया करते थे ताकि ये दरख्त सूख ना जाए। ऐसा ना हो कि ये दरख्त सूख जाए और मेरे मौला का कौल गलत हो। आपने देखा कौन सा इस्लाम है? मेरे मौला का कौल गलत ना हो। और अज़ान मोहतरम, जब मीसम को फांसी दी गई है तो पूरे मजमे की तवज्जो चाहता हूं। मैं गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद निकल गया तो वहां मैंने एक अजीब और गरीब शेर सुना अज़ीज़ान मोहतरम, और वो मैं आज पहली मुहर्रम को पहली मरतबा सिर्फ आपकी नजर कर रहा हूं। शाम से मुतादिद मजालिस में मैंने ये शेर कहीं नजर नहीं किया, मगर पूरी तवानाई से मैं तारीखी नारा चाहूंगा ये शेर सुनने के बाद। क्या कहा अज़ीज़ान? और अगर आपने पहला शेर सुनकर अपनी बेदारी का सबूत देकर नारा लगा दिया तो इसका दूसरा शेर भी सुनाऊंगा, वरना एक ही शेर सुनाकर मजलिस खत्म कर दूंगा। अजीब और गरीब शेर। अज़ान मोहतरम, हिंदुस्तान में किसी शायर ने कहा कि फराज़ेदार से मीसम बयान देते हैं, दार की बुलंदी से मीसम का डेथ स्टेटमेंट। वो गलत जानते हैं रलवा साहब कि डेथ स्टेटमेंट की सबसे ज्यादा कीमत होती है, सबसे ज्यादा अहमियत होती है। नज़ाई बयान का कोई इनकार नहीं किया करता। मरने वाला जब मरते वक्त कोई बयान दे तो वो सबसे ज्यादा सच्चा बयान देगा। तो आखिरी आदमी तक तवज्जो दोस्तों, जो अली वाला है मीसम बन के नारे का जवाब देगा। फराज़ेदार से मीसम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम ज़बान देते हैं।
मीसम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली। हम जबान देते हैं, हम जबान देते हैं। जबान खिंचवाली गई थी ना गुद्दी से, हम जबान देते हैं, सलावात देते ना, सलावात देने मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा शिया ने अगले कर रहा, दूसरा शेर नजर कर रहा हूं, और अगर ये शेर अभी आपने इतनी बुलंदी से सुना तो इसका तीसरा शेर भी सुनाऊंगा, वरना यही मौकूफ। फराजेदार से मीसम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली। ऐसे तो जबान नहीं दी थी इतनी खामोशी से। हाँ, जबानें बंद करके जबान नहीं दी जाती। तो है ना, फराजेदार से मीसम बयान देते, मुझे एहसास है, जाहिर है कि कर्फ्यू के औकात भी नजदीक है, मैं तफसील में नहीं जा सकता, आपकी जहमतों का मुझे एहसास है, लेकिन जाने मुहतरम हम क्या करें कि जितनी तंगियों दुश्वारियों में हुसैन की आजादारी आए, उतना ही हुसैन निखरता है, उतना ही हुसैन निकलता है। हुसैन हुसैन कहने का लुत्फ ही उस वक्त है जब दोनों तरफ गर्दन पर तलवारों की नोक हो और फिर कोई कहे कि हुसैन कहो। फराजेदार से मीसम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली। हम जबान देते हैं, और अब देखो इस शेर पर तवज्जो, सफे बनाओ मुहिब्बो। हाँ, स्पेंड ऑफ साइलेंस, ये पूरी तरह ये मेराज है। सफे बनाओ मुहिब्बो के दार से मीज़ान, सफे बनाओ मुहिब्बो के दार से मीज़ान, नमाज़े इश्क़ अली की अज़ान देते हैं। इतनी बड़ी सवाल थी जरा। जो मुझे रज़विया में चाहिए, बहुत जरूरी है, इसलिए कि रज़विया की आवाज कराची से खुरासान तक जाती है, इसलिए नारा हैदरी। अगर अली आपकी निगाह में इतना ही बड़ा तो मत लगाए, कोई जबरदस्ती वो कर्फ्यू वाली कराना लगा। अली तो कहते ही हैं जिसमें कोई कानून नहीं लगता, जो सब पर अपना कानून लगाता है। नारा हैदरी, किरदार से मीज़ान, अल्लाह अपना सलामत रखे। फराज सफे बनाओ मुहिब्बो, किरदार से मीज़ान, नवाज़े इश्क़ अली की। अब एक आहिस्ता से शेर सुनाऊंगा, समझ लीजिए आप। सफे बनाओ मुहिब्बो, किरदार से मीज़ान, नमाज़े इश्क़ अली की अजान देते हैं। अली की जाए विलादत की जब भी बात चली, समझना आपका काम है, अब मैं जोर नहीं लगाऊंगा, इसलिए कि आप पूरी तरह मेराज पर नजफ पे पहुंचे हुए हैं। अली की जाए विलादत की जब भी बात चली, कहा खुदा ने हम अपना मकान देते हैं। इसी मकाम को आखिरी सलाम किया है 8 ज़िलहिज को हुसैन। 8 ज़िलहिज की शब गुजार कर 9 की सुबह के सूरज ने देखा, हुसैन ने एहराम खोलने का हुक्म दिया, हज को उम्र से तब्दील करने का हुक्म दिया, और एक जुमला कहा, ये मेरे बाबा की जाए विलादत, तेरी अजमत सलामत रहेगी, मैं जा रहा हूं, मैं तो नहीं आऊंगा, मगर मुसलमान तुझे क़यामत तक सलाम करते रहेंगे, मैं तेरी तौहीन नहीं होने दूंगा, तेरा पर्दा सलामत रहे, मैं ज़ैनब की चादर लेकर जा रहा हूं, तेरे दीवारों के सतून सलामत रहे, मैं अब्बास के बाजू लेकर जा रहा हूं,
अब्बास के बाजू लेकर जा रहा। दो चार आप रो पड़े, बस आगाज मजलिस तो है ना, मुहर्रम तो शुरू हो गया ना, अब और क्या कहना है? क्या रोने के लिए इतना काफी नहीं है कि मेरे पांचवें इमाम फरमाते, कौन है मेरा पांचवा इमाम? मेरा पांचवा इमाम वो है इमाम मोहम्मद बाकर, जो करबला में अपने बाबा सैयद सज्जाद के साथ कैदी बनकर करबला से शाम तक गया। यानी तमाचे सिर्फ सकीना ने नहीं खाए, बाकर ने भी खाए हैं। अब रो न रो, मैं तो जुमला कह चुका दोस्तों। और आलम यह था कि सकीना तो ज़ैनब की गोद में थी ना, ऊंट पर बैठी हुई थी, मगर सैयद सज्जाद तो ऊंट पे नहीं बैठे थे। मेरा बीमार जिस तो हाथों में हथकड़ियां थी, पांव में बेड़ियां थी, गले में तौक था, कमर में लंगर था, 1400 मील का सफर था। अदादारो अल्लामा दरबंदी ने एक अजीब सा जुमला लिख दिया है कि सैयद सज्जाद पैदल चले हैं, अल्लाह जाने कितने कितने मील मेरा इमाम पैदल चला है। तो बाप की जंजीर के साथ छोटे से बेटे बाकर की पिंडली भी बंधी हुई थी एक ही जंजीर में। इसकी वजह से सैयद सज्जाद को कई कई मील रुकू की हालत में चलना पड़ता था ताकि बाकर को तकलीफ ना हो। और जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अदादारो रोने का हक यही है जो आप अदा कर रहे हैं। खुदा तुम्हें कोई। मेरे ये पांचवें इमाम फरमाते हैं, आज की शब के लिए 2 जुमले और मैंने मजलिस खत्म की। दोस्तों मेरे पांचवें इमाम फरमाते हैं कि जब मुहर्रम का चांद तुलू होता है, आज यकुम मुहर्रम है ना, जब मुहर्रम का चांद तुलू होता है तो एक बीबी शाम की कब्र से उठती है। मेरी माँ बहनों, अल्लाह तुम्हारे पर्दे सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे सुहाग सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी गोदियां सलामत रखे। एक बीबी शाम की कब्र से उठती है। और दूसरा जुमला तो मेरी ये खवातीन माएँ बहनें सुनेंगी जो जन्नतुल बकी में बैठी हुई है। खुदा करे जल्द वो दिन आए जब ये जन्नतुल बकी तामीर होकर या शबी बने, इंशाअल्लाह जरूर बनेगी, मगर आप पर ये जुमला बहुत असर करेगा। मेरे इमाम फरमाते, एक बीबी मुहर्रम की चांद रात को शाम की कब्र से उठती है और जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्र पे आकर सर के बाल खोलकर बैठ जाती है और सीने पर हाथ मार के कहती है, अम्मा ज़रा उठो, मेरे भाई के अज़ादार आ गए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या मातम कर रहे हैं आप? घुट घुट के ना रो। तुम पर रोने की कोई पाबंदी तो नहीं है अज़ा, रोने की पाबंदी तो ज़ैनब पर थी, रोने की पाबंदी तो सकीना पर थी कि करबला से शाम तक बाबा के कटे हुए सर को देखकर अगर 4 बरस की मासूमा ने एक मरतबा भी रोकर कह दिया ना, हाय बाबा, तो फौरन सिमर का तमाचा पड़ा है कि बाबा को न रो। एक वक्त ऐसा आ गया था कि सैयद सज्जाद हाथों को जोड़कर कहा करते थे, सकीना बाबा को न रो, सिमर तमाचे मारेगा, भाई मजबूर है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा लो 2 जुमले और मैंने मजलिस खत्म की। दोस्तों दामने वक्त में गुंजाइश नहीं रही, कल इंशाअल्लाह तफसील से मसाइल पढ़ूंगा। आपका ज़ौक़ समाअत मुझे रुकने नहीं देता। एक जुमले पर सिर्फ तवज्जो फरमाने। मेरे मौला फरमाते हैं, जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्र पे ये बीबी आकर कहती, अम्मा उठो, मेरे भाई के रोने वाले आ गए, मेरे अदा खाने सज गए, मेरे उस भाई का मातम करने वाले आ गए कि शाम गरीबा में जिस पे कोई रोने वाला नहीं था। अम्मा उठो। तो मेरे 5वें इमाम फरमाते हैं कि फिर ये दोनों बीवियां एक 4 बरस की मासूमा के साथ हर अज़ा खाने में आकर बैठ जाती है। इसीलिए कहता हूं मेरे नौजवानों, अज़ा खानों का एहतराम किया करो। अल्लाह जाने किस मोमिन के पहलू में सैयद सज्जाद बैठा हुआ मातम कर रहा हो। अल्लाह जाने किस मोमिना के पहलू में ज़ैनब बैठी मातम कर रही हो, अल्लाह जाने। और मेरे मौला फरमाते हैं कि बस आखिरी जुमला, अब इस पर रोए या ना रोए, अब ये मेरी किस्मत आप जाने और ज़ैनब की बेकसी जाने। अदादारों मेरे इमाम फरमाते हैं कि जब मोमिनीन और मोमिनात, एक जुमला मोमिनीन के लिए एक मोमिनात के लिए, मेरे हुसैन पर बावाज़े बुलंद रोते हैं, बावाज़े बुलंद गिरिया करते हैं, यानी मासूम ने बावाज़े बुलंद गिरिया मांगा है ना। जब बावाज़े बुलंद गिरिया करते हैं तो सकीना कहती
कहती है फूफी अम्मा ये कौन है जो मेरे बाबा को हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन कहकर रो रहे हैं। जज़ाकल्लाह, रोते रहे आप गुस्सा दे रहे हैं। क्या मौजूदाती मजलिस हो रही है। और मौला गाजी अब्बास के अलम के नीचे बैठे हो ना। मौला इस अलम के लगाने वाले नौजवानों को भी सलामत रखे, मौला इस बारगाह सजाने वालों को भी सलामत रखे, मौला इन अज़ादारों को भी सलामत रखे। जो गाजी की बहन को पुरसा दे रहे हो, जो गाजी के अलम के नीचे बैठे हो, वो एक जुमला सुने। सकीना कहती है अम्मा ये इतने अज़ादार किसे रो रहे हैं। ज़ैनब कहती है सकीना ये सब तेरे बाबा के अज़ादार हैं। लो मैं बड़े सुकून से जुमला कह के मजलिस खत्म कर रहा हूं। आप घरों तक रोते हुए जाना, घरों तक रोते हुए जाना। अगर सुन लिया, अब जिसके दिल में ज़ैनब की बेपर्दगी की कब्र है ना, वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इससे ज्यादा मैं पढ़ भी नहीं सकता। अज़ादारों, सैयदे जनाब ज़ैनब कहती है सकीना ये सब तेरे बाबा के अज़ादार है। तो सकीना कहती है फूफी अम्मा मेरे बाबा के इतने बहुत से अज़ादार, इतने रोने वाले। ज़ैनब कहती है हाँ बेटा खुदा चश्मे बद से महफूज रखे, ये सब तेरे बाबा के अज़ादार हैं। सकीना माँ मेरी माँ बहनों जुमला सुन के मातम करना। सकीना कहती है अगर इतने बहुत से अज़ादार करबला में क्या फुर्सत दे रहे हैं और आपको ये मुमनात के लिए जुमला तो माशाअल्लाह खुदा तुम्हारी कोटों को सलामत रखे, खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। लो एक जुमला तुम्हारे लिए। और जनाब सकीना फिर मुमनात की तरफ रुक करके कहती है फूफी अम्मा ये मुमनात भी मेरे बाबा को रो रही है। जनाब ज़ैनब कहती है हाँ ये भी तेरे बाबा की करीने है, ये तेरी ज़ैनब की करीने है, ये सब मातम करने आई है हमारी बेपर्दगी का। तो 4 बरस की बच्ची सकीना अपना नन्हा सा दामन फैला कर कहती है परवरदिगार मेरी माँ रबाब तो उजड़ गई। अब समझ गए तो बस खत्म किया मैंने मजलिस को। परवरदिगार मेरी माँ रबाब तो उजड़ गई, न उसका असगर रहा न उसकी सकीना रही। एक करबला में रह गया, एक शाम के कैद खाने में। पालने वाले तुझे माँ रबाब का वास्ता, ये जो औरतें मेरे बाबा का मातम कर रही हैं इन्हें मीन के बच्चों को मेरी तरह यतीम ना, कितनी बड़ी दुआ मातम नहीं कर रहे। इनके बच्चों को मेरी तरह यतीम न करना, इनकी बच्चियां मेरी तरह तमाचे न खाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين کہ زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رے داواں رو آنکھ زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رے داواں رو آنکھ زینب کس پاس جاواں عابد بچاواں یا یک بجاواں عابد بچاواں یا یک بجاواں رو آنکھ زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رے داواں رو آنکھ زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رے داواں رو آنکھ زینب کس پاس جاواں عابد بچاواں یا یک بجاواں عابد بچاواں یا یک بجاواں رو آنکھ زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا
لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاسے جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاسے جاواں یوسف تو سونے میرے ویر مارے میں شام چلیا بے کفن سارے یوسف تو سونے میرے ویر مارے میں شام چلیا بے کفن سارے قبرہ بناوا یا رسیاں پاواں قبرہ بناوا یا رسیاں پاواں رو آکھے زینب کس پاسے جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاسے جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاسے جاواں مہدی بچاور وچ شام آئی سب لوگ ویکھن میری بیری دائی مہدی بچاور وچ شام آئی سب لوگ ویکھن میری بیری دائی خطبے سناواں یا منہ لکاواں خطبے سناواں یا منہ لکاواں رو آکھے زینب کس پاسے جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاسے جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاسے جاواں جس ویر دے لئی چھڈیا مدینہ جی میں قتل ہویا بھولنا کدینہ جس ویر دے لئی چھڈیا مدینہ جی میں قتل ہویا بھولنا کدینہ انہوں کفن پاواں یا شام جاواں انہوں کفن پاواں یا شام جاواں رو آکھے زینب کس پاسے جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاسے جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاسے جاواں خیمے قاسم دی لاش آئی چم چم کے ٹکڑے کرے زارا جائی خیمے قاسم دی لاش آئی چم چم کے ٹکڑے کرے زارا جائی ہن سیرے لاواں یا سفری چاواں ہن سیرے لاواں یا سفری چاواں رو آکھے کس پاسے جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاسے جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاسے جاواں یوسف تو سونے میرے ویر مارے میں شام چلیا بے کفن سارے یوسف تو سونے میرے ویر مارے میں شام چلیا بے کفن سارے قبرہ بناواں یا رسیاں پاواں قبرہ بناواں یا رسیاں پاواں رو آکھے زینب کس پاسے جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاسے جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاسے جاواں عابد بچاواں یا اکبو جاواں عابد بچاواں یا اکبو جاواں رو آکھے زینب کس پاسے جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب